Hello, good morning, class 10th students, and welcome to my new video. We will today uh, study one more chapter, its story, chapter number 10, The Book That Saved the Earth by Claro Boyko, from your footprints without feet. Today we will discuss its summary in points, and because this is a short play, this is very detailed in your book, so we will we would like to summarize to understand in short. Okay. Mother Goose is a well known book of nursery rhymes in English. Do you think such a book can save planet Earth from the Martian invasion? Read this play, set for centuries in the future. Set for centuries in the future and find out. ये this this is a short play, and this is an imaginary play. इसमें बताया गया है कि मार्शियन इन्वेजन से हमारे प्लैनेट अर्थ को एक बुक है मदर गूज नाम की नर्सरी राइम्स की, जो इंग्लिश में वो कैसे बचा सकती है. मेन कैरेक्टर्स ऑफ दिस शॉर्ट प्लेज आर historian Lieutenant Iota, great and mighty think tank, that is Sergeant O, apprentice Noodle of stage voice, Captain Omega. There are 4 characters. Okay, so I am going to start its summary. Scene 1. It's the time of 25th century. The place is of the Museum of Ancient History. It is department of the 20th century on the planet Earth. Historian is sitting on a table. There is a movie projector on the table. The historian, where is the historian sitting? The historian is sitting on a table, and in front of him there is a movie projector on the table. And the place is of the Museum of Ancient History. This is the place. Okay. Or which department is there? It is the department of 20th century on the planet Earth. This is the scene, the set of the scene. First point, scene 1. Historian says how a book saved the earth. The second point, the book that saved the earth. Third, think tank shown. Fourth, think tank and Noodle, his deputy. Fifth, space probe contacted. Scene 1. Historian says how a book saved the earth. Historian greets the curiosities of the 20th century. Curiosities means उत्सुकताएं. It is very hunger of knowing something. किसी चीज़ को जानने की भूख, that is called curiosities. किस चीज़ की? किसकी? 20th century. She states that the 20th century was often called the era of the book. In those days, there were books about everything. They taught the people everything. But the strangest thing was that a book saved the earth. This is ये historian 20वीं सेंचुरी की जो क्यूरियोसिटीज़
का वेलकम करती है, वो कहती हैं हु द historian says that the 20th century was often called the era of the book. 20th century बुक का ही युग, पुस्तकों का, किताबों का युग कहलाता था. In those days there was books about everything. They taught the book, that they taught the people everything from book. But the strangest thing was that a book saved the, और बुक का ही ज़माना था और एक बुक ने ही अर्थ को बचाया. कहाँ से? मार्शियन इन्वेजन से. सेकंड पॉइंट, द बुक दैट सेव्ड द अर्थ. द स्टोरी रिलेट्स टू द मार्शियन इन्वेजन ऑफ 2014. 2014 के मार्शियन इन्वेजन से ये बुक रिलेट करती है. बट इट नेवर हैपेंड. अ सिंगल बुक स्टॉप्ड. It was a noble encyclopedia about rockets and missiles. This is encyclopedia means एक a great epic, एक बहुत बड़ा महान ग्रंथ था जिसने रॉकेटों और मिसाइल्स के हमलों से इस अकेली एक पुस्तक ने, एक बुक ने, that saved the earth. Think tank shown. थिंक टैंक का दिखाया जाना. द हिस्टोरियन देन टर्न्स ऑन द प्रोजेक्टर. स्पॉटलाइट कम्स ऑन थिंक टैंक. ऑन प्रोजेक्टर, ऑन द स्क्रीन, फर्स्ट कम्स द थिंक टैंक. थिंक टैंक मीन्स इट इज़ अ पर्सनैलिटी लाइक डॉन और दैट नोज एवरीथिंग. दैट इज थिंक टैंक. ही हैज़ अ ह्यूज egg-shaped head. Huge means big. Egg-shaped head. Egg-shape का उसका सिर था. He wears a long robe decorated with stars and circles. Long robe. Robe means लंबी सी पोशाक, लाइक गाउन या क्लोक टाइप का होता है जिसपे स्टार्स और सर्कल्स बने हुए थे. अपेरेंटिस. नूडल stands beside him at a switchboard. It is Mars Space Control. Think tank is its commander-in-chief. Think tank and Noodle his deputy. Noodle greets think tank. Noodle इसका डेपुटी है थिंक टैंक का और वो उसको स्वागत करता है, उसका वेलकम करता है. He asks for his orders. Think tank asks Noodle to let him talk with their manned space probe to the planet. Think tank का वो नूडल स्वागत करता है. वो उसके आदेशों के लिए कहता है. थिंक टैंक नूडल को कहता है कि वो उसकी ग्रह पृथ्वी पर गए मानव द्वारा चालित आकाशयान से बात कराए, है ना. थिंक टैंक ऑर्डर्स हिम कि उसकी मानव द्वारा चालित आकाशयान से बात कराए. यू नो अर्थ, planet Earth. Think tank says that they are soon going to take it over. He also asked for his mirror. थिंक टैंक कहता है कि जल्दी वो उस पर कब्ज़ा करने जा रहे हैं. क्या थिंक टैंक उनको, इस अर्थ वालों को कहता है, वो अर्थ के ह्यूमन बींग्स को. स्पेस प्रोब कॉन्टैक्टेड. स्पेस प्रोब से संबंध स्थापित करना. थिंक टैंक आस्क्स द मिरर who is the most gifted being in the land. The mirror replies that he himself is that. Think tank asks the mirror who is the most gifted being in the land. Think tank उससे मिरर से पूछता है, उस शीशे से, दर्पण से, कि कौन सबसे ज़्यादा आशीष मिली है उसको. गिफ्टेड, मोस्ट गिफ्टेड मीन्स most blessed. The mirror replies
that he himself is that. Mirror replies, his reply reacts और क्या कहते हैं उसकी तरफ ही फेवर में जाता है उसका रिप्लाई एंड रिफ्लेक्ट करता है उसको खुद को. ही आस्क्स इफ द मार्शियंस आर नॉट मोर हैंडसम रेस देन द अगली अर्थलिंग्स. He asked Noodle to contact the space probe. नूडल को वो स्पेस प्रोब से यानी कि अंतरिक्ष यान आकाशयान से संबंध बनाने के लिए कहता है. सॉरी. They are going to attack the earth before lunch. Before the time of lunch, they are who? The army of think tank. They are going to attack the earth. Scene second. The scene is of Mars Space Control and the Centreville Public Library. This scene change हो गया, ये वेन्यू भी चेंज हो गया, जगह. कैप्टन ओमेगा stands opening and closing the कार्ड कैटलॉग ड्रॉर्स. वो कार्ड कैटलॉग की ड्रॉर को खोलता है. लेफ्टिनेंट आयोटा इज़ अप लेफ्ट. वो बाईं तरफ है. कौन? लेफ्टिनेंट आयोटा. सर्जेंट ओप इज़ एट राइट टर्निंग द पेजेस ऑफ अ बुक. और सर्जेंट ओप किसी एक किताब के पेजेस को पलटता हुआ राइट में खड़ा है. टॉक बिटवीन थिंक टैंक एंड कैप्टन ओमेगा. इन दोनों के बीच बातचीत. नूडल टेल्स थिंक टैंक दैट ही सीज द स्पेस क्रू. नूडल टेल्स थिंक टैंक दैट ही सीज द स्पेस क्रू. What he sees? He sees the space crew that he informs to think tank. He asks for making voice contact. वो कोशिश कर रहा है वॉइस कॉन्टैक्ट करने की. नूडल कॉल्स फॉर कैप्टन ओमेगा टू गिव देम देयर लोकेशन. कैप्टन ओमेगा सेज दैट they have arrived on earth without any incident. कैप्टन ओमेगा कहता है कि अब वो अर्थ पे पहुंच गए बिना किसी घटना के. अबाउट कैप्टन ओमेगा आस्क्स लेफ्टिनेंट आयोटा वेयर दे आर. लेफ्टिनेंट आयोटा कांट रिप्लाई. शी however says that there are about 2,000 peculiar items books. लेफ्टिनेंट आयोटा उत्तर नहीं दे सकती, फिर भी वो बताती हैं कि वहाँ पर लगभग 2000 अजीब तरह की बुक्स हैं. एंड द प्लेस मस्ट बी सम स्टोरेज बार्न. और वो स्टोरेज बार्न मतलब भंडार करने वाली जगह वो बनी हुई है बुक्स के भंडारण के लिए. ओप एड्स दैट ही हैज़ बीन टू 7 गैलेक्सीज. 7 गैलेक्सीज मतलब 7 आकाश गंगाएँ वो जो उप कहता है कि उसको दिखी. बट ही हैज़ नेवर सीन एनीथिंग लाइक दोज थिंग्स. ही कॉल्स देम हैट्स. लेकिन उसने उन वस्तुओं जैसी कोई चीज़ नहीं देखी जिसे वो हैट बताता है, हैट्स. ओमेगा आस्क फॉर थिंक टैंक्स एडवाइस. थिंक टैंक looks at the books. He calls them eatables, that they are in a refreshment stand. Think tank does not understand what things are those. Those are already we have known that those are books. But think tank that does not know. He thinks that this is something to eat at the time of refreshment. Books as सैंडविचेस. बुक्स उनको क्या लग रही थी? सैंडविचेस के रूप में. थिंक टैंक सेज दैट what they have in their hands are sandwiches. They are the main food of earth diet. The books
were looking as us and as sandwich which we use on the earth for eating. Think tank orders omega to eat it. वो थिंक टैंक उसको खाने के लिए ऑर्डर करता है कि खाओ इसको, देखें, जबकि वाइल दे आर बुक्स, वो कंफर्म करने के लिए कि वेदर दे आर ईटेबल थिंग और नॉट, और सैंडविचेज और नॉट. ओमेगा इज रेडी टू ईट, बट ही आस्क्स लेफ्टिनेंट आयोटा टू ईट एज ही हैजंट टेकन हिज ब्रेकफास्ट येट. Wonder at the sandwiches. Wonder at the sandwiches. Aita finds it is a great honor to be the first Martian to eat a sandwich. Iota finds greater greater honor, एक महान आनंद या सम्मान उसको ये मिलेगा कि वो he was the first Martian to get a sandwich from the earth. She orders, आयोटा ऑर्डर करती है सर्जेंट ऊप टू ईट, सर्जेंट ऊप को खाने के लिए. ऊप बाइट्स ऑन अ कॉर्नर ऑफ द बुक, मतलब ऊप को ये पहला मार्शियन माना जाएगा इन द हिस्ट्री कि उसने सैंडविच नाम की कोई चीज़ खाई अर्थ पे. ही प्रिटेंड्स टू चू एंड सैलो. थिंक टैंक्स आस्क इफ इट वॉज डिलीशियस. ओप सेज इट वॉज. ही वंडर्स हाउ द अर्थ पीपल ईट इट विदाउट वाटर. वो एक बहाना सा करता है ऊप के, जैसे वो चबा रहा है, उसको निकल रहा है, तो थिंक टैंक पूछता है कि क्या वो डिलीशियस है, स्वादिष्ट है, तो कहता है यस. थिंक टैंक्स वर्जन अबाउट सैंडविच. उसका थिंक टैंक्स थिंकिंग अबाउट नूडल्स इन्फॉर्म्स थिंक टैंक दैट अ बिट ऑफ डाटा floated into his mind. He tells that the earthlings did not eat them. देखो, थिंक टैंक नूडल थिंक टैंक को बताता है कि उसके मन में थोड़ा सा डाटा आया और वो बताता है कि पृथ्वीवासी ने खाते नहीं थे, है ना. उसने पता कर लिया फ्रॉम सम डाटा, बट दे यूज्ड दैम एज कम्युनिकेशन डिवाइसेस. उसको ऐसा लगा, बिल्कुल सही सोच बन रही है अब उसकी, वो खाते नहीं थे बल्कि उस चीज़ का यूज़ वो कम्युनिकेशन डिवाइसेस के रूप में यूज़ करते थे. कम्युनिकेशन डिवाइसेस मीन्स एक दूसरे को इंफॉर्मेशन भेजने के तरीके के रूप में उन बुक्स को यूज़ करते थे. थिंक टैंक ऑल्सो कॉल्स दैम दीज एज ही इज़ नेवर रॉन्ग. He orders Omega to listen to them. Think tank takes him to be a very wise person. He never thinks wrong. Opinion about earthlings. पृथ्वीवासी, earthlings जमीन के निवासी. Think tank asks Omega if he listens something from them. Omega replies that they may not be on the correct frequency. थिंक टैंक ओमेगा से पूछता है कि क्या वह उनसे कुछ सुन रहा है. ओमेगा उत्तर देता है कि वे संभवतः सही तरंग पर नहीं है. थिंक टैंक कॉल्स दैट द अर्थलिंग्स हैव शार्पर ईयर्स. अर्थलिंग्स और द रेजिडेंट्स ऑफ द अर्थ, दे हैव शार्प ईयर्स. सैंडविचेज एज आई कम्युनिकेशन. सैंडविचेज को आप कम्युनिकेशन की आई के रूप में देखते हैं. नूडल सेज दैट ही हैज़ अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इन हिज माइंड. ही सेज दैट द अर्थलिंग्स ओपनड दैम एंड वॉच्ड दैम. थिंक टैंक एड्स दैट दोज सैंडविचेज आर फॉर आई कम्युनिकेशन. दिस इज
वो कहता है कि थी आई आई कम्युनिकेशन के रूप में इन सैंडविचेस को यूज़ किया जाता है. ही आस्क्स कैप्टन ओमेगा टू टेक 3 सैंडविचेस एंड टेल हिम व्हाट ही सीज इन देम. वो he asks think tank asks different persons, Noodle, Omega and Oops, what they think about those books. तो अभी तक स्टिल दे आर नॉट, दे हैव नॉट रिच्ड एट एनी डिसीजन. वो अभी किसी निर्णय पर नहीं पहुँचे. विटामिन्स फॉर इंक्रीजिंग इंटेलिजेंस. नाउ न्यू थिंग, अब वो उन बुक्स को विटामिन्स के रूप में देख रहे हैं जो इंटेलिजेंस को या विजडम को बढ़ाने के काम आती. ओमेगा रिप्लाइज दैट दे हैव पिक्चर्स ऑफ अर्थलिंग्स. They have some sort of code, lines and dots with the pictures. Think Tank asks Omega to take vitamins to increase their intelligence. अब वो थिंक टैंक ओमेगा को ऑर्डर करता है कि अब वो विटामिन लेवें ताकि उनकी इंटेलिजेंस बढ़े. He asks him to unfold those pictures, etc. Omega swallows vitamins. अब उन बुक्स को निकल जाता है. वो विटामिन्स समझ रहा है. कौन? ओमेगा. उसको निकल जाता है इसको. हाउ सैंडविचेस मीन टू थिंक टैंक. अब थिंक टैंक के लिए वो सैंडविचेस क्या मायने रखती हैं. थिंक टैंक आस्क्स ओमेगा टू डेसिफर द कोड इन द सैंडविचेस. थिंक टैंक ओमेगा को सैंडविच के कोड को तोड़ने के लिए कहता है. टू डेसिफर मीन्स तोड़ना. ओमेगा रीड्स द नर्सरी राइम्स. मिस्ट्रेस मैरी. थिंक टैंक वंडर्स हाउ द अर्थिंग्स हैव कंबाइंड एग्रीकल्चर एंड माइनिंग. वो मिस्ट्रेस मैरी नाम की राइम को पढ़ता है और फिर थिंक टैंक उसके अंदर ये राइम्स में पता लगता है उसको कि अर्थलिंग्स जो हैं कि एग्रीकल्चर और माइनिंग कैसे जो है ये काम कर लेते हैं दोनों एक साथ. दे ऑल्सो ग्रो एक्सप्लोजिव. ही आस्क्स नूडल टू कॉन्टैक्ट देयर इन्वेजन फ्लीट. और वो नूडल को वो मतलब वे विस्फोटकों को भी उगाते हैं एक तरह से. वो नूडल को उनके आक्रमण आकाश यानों के साथ संपर्क करने के लिए कहता है. He asks Noodle to contact their invasion fleet. Invasion fleet means जो अटैक करने वाले दस्ते होते हैं ना उनको इन्वेजन फ्लीट कहते हैं. नूडल रिप्लाइज दैट दे आर रेडी टू टेक ओवर द अर्थ. नूडल रिप्लाई करता है कि वे पृथ्वी यानी कि अर्थ पर कब्जा लेने के लिए तैयार हैं. टुडे इट इज़ सफिशिएंट फॉर टुडे and we will continue this video in the next time till you have to read all these word meanings from this chapter. Okay, take care of yourself and have a nice day. Thank you and have a nice day once again. God bless you. चुनमुन तो